Do you know about adjective? First, we will discuss about this definition of adjective. Adjective is a word which qualifies or modifies a noun or pronoun. From basic classes, you are learning this definition, the same definition, or you can say adjectives qualify or modify a noun or pronoun, right? So both the definitions you can learn, you can know. Now suppose any noun you are taking. Man is written here. Man is noun. Man is noun. And after that you are saying something special about this man. So you are saying old man. What you are saying? Old man. Now you can say tall man. Now you can say short man. Right? So these words which qualify or modify this noun, these are called adjectives. These are called adjectives. And after that pronoun also. So noun or pronoun. The words which qualify noun or pronoun. The words which qualify or modify, yes, say something more about a noun or pronoun is called adjective. Right? Yeah, are called adjectives. Now, kinds of adjectives. Some more things are given in your chapter, kinds of adjective. Now, after defining adjective, we will discuss about kinds of adjectives. So you can see in book also, there are 7 kinds of adjectives. How many kinds of adjectives? 7. There are 7 kinds of adjectives. 7 kinds. 7 kinds of adjectives. So, we are going to discuss about this. Now, the first one is given adjective of quality. Now, second one adjective of quantity. Yes. Now, third one adjective of number. Okay, now the next one adjective of Demonstrative. that is demonstrative adjective. Demonstrative. Okay, the next one interrogative. Okay. The next one possessive. The next one Distributive. okay, distributive. Distributive adjective. Okay. So, firstly we will discuss about adjective of quality. What is called adjective of quality या what is adjective of quality? Adjective के बारे में मैंने आपको बताया once again I want to explain this in Hindi also कि आपने हिंदी में भी विशेषण शब्द पढ़ा है. विशेषण पार्ट्स ऑफ स्पीच है. विशेषण के बारे में आपको बताया गया कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. The same thing you are saying in English also. The words which qualify a noun or pronoun are called adjectives. उनको आप adjectives कहते हो जो किसी noun या pronoun को qualify करते हैं, modify करते हैं. Now there are 7 kinds of adjectives: adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, possessive adjective, and after that distributive adjective. Okay. So one by one we will know about all. First go through your book. What definition is given in your book? Okay, adjectives of quality. This is कि an adjective of quality shows what kind of a noun or pronoun is. Something more I will tell you about this one. Quality. Adjective of quality. बुक में आपके दिया गया है कि adjective of quality shows what kind of a noun or pronoun is. Adjective of quality ये दिखाता है किस प्रकार का वो noun या pronoun है. Now, one more thing I want to tell you that adjective of quality means you are defining the shape, size, and color of the thing, and after that something more. Its kind. Quality क्या होती है? What is quality? Quality, shape, size, color, and something else. What type of that noun or pronoun, किस तरह का वो है,
किस तरह का मतलब किस तरह की उसकी साइज है, किस तरह का उसका शेप है, किस तरह का उसका कलर है. द वर्ड्स कम इन कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, शेप, साइज एंड कलर. तो शेप, एज यू आर सेइंग मैन, आई टोल्ड यू ना मैन. चलिए शेप की बात करते हैं. राउंड मैन, गोल आदमी, बहुत ज्यादा मोटा हो उसको आप बोलोगे दैट इज राउंड मैन. ओके. और नाउन की आप बात कर रहे हो ना, तो दैट यू कैन टेक ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट यू कैन से राउंड ऑब्जेक्ट, राइट, स्क्वायर ऑब्जेक्ट. शेप की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट. ओके. सर्कुलर ऑब्जेक्ट, बॉल, सर्कुलर बॉल, बॉल तो सर्कुलर होता ही है. स्फेरिकल आप बोलते हो, सर्कुलर, स्फेरिकल. सो व्हाट एवर. ओके. एंड आफ्टर दैट साइज, साइज टॉल, स्मॉल, शॉर्ट, long, whatever these words you are using. And after that color, black car, white shirt, red sweater, these words you are saying na. Yes. So these are known as adjective of quality. Got it? Yes, sir. Any doubt about this definition? No, sir. Okay. Now second topic, adjective of quantity. We are going to discuss about adjective of quantity. इसको बताने के लिए मैं दोनों चीजें एक साथ लेना चाहूंगा. दिस क्वांटिटी एंड नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. जस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशन व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू. फर्स्टली तो आई वांट टू मेक यू क्लियर अबाउट क्वांटिटी एंड नंबर. देखिए सो मेनी थिंग्स आर हियर और सो मेनी नाउन्स आर हियर. मीन्स पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, व्हाटएवर सारी चीजें हैं. उनके अंदर आप दो तरह की चीजें डिफाइन करते हो. फर्स्टली काउंटेबल एंड सेकेंड वन अनकाउंटेबल. दो तरह की चीजें आपको मिलती हैं. Yes. फर्स्टली काउंटेबल एंड सेकेंड अनकाउंटेबल. जो काउंटेबल होता है, काउंटेबल मीन्स यू नो द नाउन्स विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हो. जैसे आपने बोला पेन, यू कैन काउंट. Yes. बॉय, यू कैन काउंट. Yes. हाउस, यू कैन काउंट. Yes. राइट. Yes. दिस थिंग. एंड अनकाउंटेबल, जो हमारे सामने तो हैं बट वी कांट काउंट देम, हम वो काउंट नहीं कर सकते. चाह करके भी उनको 1 2 3 4 में हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल राइस, Yes. वाटर, मिल्क, हेयर, Stars. स्टार्स. ठीक है. यू कांट काउंट टू ऑल. 1 2 3 4 तो 2 4 लेकर आप कर सकते हो बट यू कांट काउंट ऑल. अगर आपको एक बकेट राइस दे दिया जाए या एक बकेट ऑफ वाटर दे दिया जाए और कहा जाए आप काउंट करके बताओ, यू कांट काउंट. Sir, milk bottle also countable now. अनकाउंटेबल. हाउ यू Sir, कैन milk काउंट bottle. Sir, अगर मिल्क बॉटल. Yes. अरे बॉटल, व्हाई यू आर सेइंग मिल्क बॉटल? दैट कैन बी मिल्क बॉटल, ऑयल बॉटल, मेडिसिन बॉटल, व्हाटएवर ना. तो बॉटल्स आर तो काउंटेबल ना. Yes. आई एम नॉट सेइंग बॉटल, आई एम सेइंग वाटर. मिल्क separately and water separately. Okay. Yes. So now we will discuss about these things. तो काउंटेबल, देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में दो तरह की चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा. फर्स्टली डेफिनेट, डेफिनेट काउंटेबल और दो सेकंड वन इनडेफिनेट. ठीक है. डेफिनेट जो निश्चित काउंटेबल हो, जिनको कंफर्मली आप बता सकते हो, जैसे 1 बॉय, 2 बॉय, 5 बॉय, 6 बॉयज, 10 बॉयज, 5 पेन्स, right? Yes. 1000 pence, whatever you have counted that already. Okay. So definite countable, indefinite countable, crowd है, भीड़ है बहुत सारी. तो you can count the persons, you can count people, but at that time you are not able to count them. आप उनको count नहीं कर पा रहे हो. Mangoes तो countable, but if so many mangoes are there on the tree, तो you are unable to count them at that time. काउंट कर सकते हैं पर उस समय काउंट नहीं कर पा रहे हैं. तो दोज आर इनडेफिनिट काउंटेबल. गॉट इट. चलिए अब अनकाउंटेबल के बारे में बात करते हैं. अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. 1 by 1 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस वी कांट काउंट. तो जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं क्वांटिटी में
मेजरमेंट उनका भी होता है पर क्वांटिटी में होता है, और काउंटेबल का मेजरमेंट किस में होता है, नंबर में होता है, 1 2 3 4 व्हाटएवर। क्वांटिटी में हम आते हैं, इसमें भी दो तरह की चीजें आएंगी, डेफिनेट और इंडेफिनिट, डेफिनेट काउंटेबल, इंडेफिनिट काउंटेबल, डेफिनेट अनकाउंटेबल और इंडेफिनिट अनकाउंटेबल। क्वांटिटी में लेते हैं, क्वांटिटी मींस वी कैन मेजर दैट, वी कांट काउंट बट वी कैन मेजर। Milk is uncountable, but then also you are getting it in exact quantity. कोई भी दूध वाला आपको ऐसे ही नहीं, कहीं आपको एक गिलास दूध दे दिया, कहीं अगले दिन पूरा डिब्बा दे दिया, ऐसे नहीं करता है। वो मेजर करता है, किसमें मेजर करता है, लीटर में। किसमें करता है, लीटर। यू आर गोइंग टू पेट्रोल पंप, तो फिर पेट्रोल और फ्यूल इन योर बाइक, कार, व्हाटएवर, तो यू आर आल्सो गेटिंग देयर एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। वहां भी फ्यूल का आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी ही मिलता है। भैया 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, 2 लीटर डाल दो, बोलते हो आप, और एग्जैक्टली यू आर गेटिंग द सेम, आपको उतना ही मिलता है। अब दो तरह की चीजें मैंने आपको बोला है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, उनका भी डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेट कब है कि यू आर आस्किंग गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। A glass of water means that is definite, confirm है ये, आप काउंट नहीं कर सकते हो बट उसका मेजरमेंट कंफर्म है। अ ग्लास ऑफ वाटर, या 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क, तो 1 लीटर मिल्क आप इसको 1 लीटर लिखा होने की वजह से नंबर की कैटेगरी में मत रखिएगा, बिकॉज अगेन यू आर नॉट एबल टू काउंट दिस मिल्क। आप इस मिल्क को काउंट करने लायक नहीं हो, यू कांट काउंट, आप काउंट नहीं कर पाओगे, बट यू कैन मेजर दैट, आप उसको मेजर कर सकते हो। हाउ मच, 1 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सड़क पर दूध गिर गया, तो क्या बोलोगे, अ लॉट ऑफ मिल्क स्प्रेड ओवर द रोड, स्प्रेड ओवर ऑन द रोड। ढेर सारा दूध वहां सड़क पर बिखरा पड़ा था, ये बिखरा पड़ा है, राइट, ठीक है। आपने कहा अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास, थोड़ा सा दूध ग्लास में बचा हुआ है, क्या काउंट कर सकते हो आप, नो सर, नहीं, और बता भी नहीं पा रहे हो कितना, दैट आप बता दो रहे थोड़ा सा, बट दैट इज नॉट कंफर्म, दैट इज नॉट डेफिनेट, तो क्या हो गया, वो इंडेफिनेट हो गया। तो 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स आर हियर। फर्स्टली वी कैन काउंट, ओके, जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऐसी चीजें ऐसे 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, दीज विल कम इन कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आप बोलते हो 5 रुपीज नोट, आपने बोला तो नाउ यू कैन काउंट दैट ना, कि 1, दैट इज 1 ना, 5 boys, 10 monkeys, right? Yes. These are adjective of number and definite. They are definite adjectives of number. And after that indefinite की जब आप बोलते हो, जब बोलते हो some boys were playing there, few teachers were absent today, कुछ absent थे, काउंट कर सकते हो, you can count the teachers because they are persons, but you are not able to count at that time, right? और ऐसी चीजें जो अनकाउंटेबल है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उनको आप किस कैटेगरी में रखोगे, क्वांटिटी की कैटेगरी में रखोगे। तो आई एम गोइंग थ्रू योर बुक इज डेफिनेशन एंड एग्जांपल। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज गिवन, एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी shows हाउ मच द थिंग इज, कितना है कोई चीज। अच्छा, दोनों में एक डिफरेंस देखिए, क्वालिटी जो क्वांटिटी है वो बताएगा हाउ मच, क्या बताएगा, कितना, हाउ मच, और नंबर बताएगा हाउ मेनी, कितने, ठीक है। तो हाउ मेनी मींस होता है, हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल थिंग्स। हाउ मेनी का आंसर जब आप दोगे तो एग्जैक्टली आपको नंबर में बताना पड़ेगा, 1 2 3 4। हाउ मेनी पेन्स डू यू वांट, कितने पेन आपको चाहिए, 5। फॉर हाउ मेनी डेज यू आर एब्सेंट, 3। ओके, हाउ मेनी, सर प्लीज टेल मी हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू स्पीक, 10। in dictation 10, so that answer you have to give exactly in number, but quantity में how much, कितना, आपसे पूछा जाएगा how much milk do you want, कितना दूध आपको चाहिए, 1 लीटर, 2 लीटर, a glass of milk, a bucket of milk, whatever, right? Okay, again rice, how much rice do you want, how many नहीं पूछा, कितने चावल आपको चाहिए, तो काउंट करके नहीं देगा आपको, 5 राइस, तो 5 दाने देगा क्या चावल के, नहीं, तो आप उसको क्वांटिटी बताते हो।
1 kg राइस, तो 1 kg को वेट करके दे देता। अच्छा, किसी का 1 kg में देखो डिफरेंस भी है ना, क्वांटिटी में डिफरेंस भी होता है। चलो राइस की हम बात करते हैं सर, राइस कैन बी काउंटेड, हम बैठ जाएंगे उसको काउंट करने, बैठ जाएंगे। बड़ी मात्रा में तो एकदम नहीं कर पाओगे, छोटी मात्रा में जो 50 ग्राम आपने लिया 50 ग्राम मैंने लिया, आप चेक कर लो, कभी वो बराबर नहीं आएगा। आएगा क्या 1/1, अगर एक एक ग्रेन आप उसके जो है आप उसको काउंट कर रहे हो, देन आल्सो दैट विल बी डिफरेंट होगा ना। किसी के चावल के दाने बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, कुछ टूटे होंगे, कुछ डिफरेंट होगा, तो उसमें क्या होगा, कभी बराबर नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा आपको। और मिल्क और वाटर जो लिक्विड है उनको तो बिल्कुल काउंट कर कैसे कर पाएंगे, काउंट कर पाएंगे क्या? एक 1 मिल्क को अलग किया, 1 मिल्क को अलग किया, 1 वाटर को अलग किया, कैन यू डू इट? नो, तो यू कैन मेजर दैट ओनली, राइट। तो वो किस में आएगा, क्वांटिटी में आएगा। तो इसलिए हाउ मच बोला गया है कि एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच द थिंग इज, कितना है। जैसे आई हैव मेनी बुक्स, देखिए दिस आई हैव मेनी बुक्स, फर्स्टली तो डोंट गो थ्रू दिस एग्जांपल। जैसे आप ये कह सकते हो कि आई हैव मच मिल्क, राइट, बोल रहे हो आप। I have a little milk. I have a little water in the jug, in the glass. Now the next thing says adjective of number, and adjective of number shows how many nouns or pronouns are. कितने नाउन या प्रोनाउन है। देखिए हाउ मेनी आया ना, तो हाउ मेनी के लिए आप बोल रहे हो, जैसे आपने कहा कि राम्या हैज 2 रेड ड्रेसेस, राइट, एग्जैक्टली यू आर सेइंग, डेफिनेट है ये, दिस इज डेफिनेट। और सम जब आप बोलते फ्यू बोलते तो इनडेफिनिट हो जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू दिस वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम डिमॉन्स्ट्रेट और डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेट मींस होता है संकेत करना, टू पॉइंट या टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज की तरफ इशारा करना, संकेत करना, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से ही डिमॉन्स्ट्रेटिव बना हुआ है। यू आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, आप किसी चीज को इशारा कर रहे हो, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, एटसेट्रा। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, प्रोनाउन में भी आते हैं और एडजेक्टिव में भी आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? आर यू क्लियर? सो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हमेशा ध्यान में रखो, जहां पर भी आपको दिस, दैट, दीज, दोज ऐसी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, हियर, देयर, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। जैसे क्या बोल रहे हो, दैट इज माई पेन, दैट पेन इज माइन, ओके। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वो घर है जहां मैं रहता था, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हो, उस घर की तरफ बता रहे हो कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी या दिस हाउस बिलोंग टू मी, राइट। क्लियर है। These boys are playing, boys, no, boys are playing, these boys are playing, ये लड़के खेल रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हो आप, संकेत कर रहे हो, उधर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, ये लड़के खेल रहे हैं। These girls are studying and these boys are playing, या these girls are studying and those boys are playing, right? क्लियर है ना। Come here, यहाँ आओ, संकेत किया ना, कहाँ आने के लिए बोल रहे हो, यहाँ पर। Go there, वहाँ जाओ। क्लियर? Are you getting? Yes, sir. Okay. So demonstrative. These words, this, that, these, those, here, there, and so many. Right? One more thing. एक डिफरेंस होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में, उसका भी जरा सा निराकरण यहाँ कर लेते हैं, उसको कंफर्म कर लेते हैं। बच्चों के मन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस इज माई पेन, और एक सेंटेंस होता है दिस पेन इज माइन। बच्चे कहते हैं सर इसमें बताइए कि दोनों में दिस आया हुआ है तो हम कैसे कंफर्म करें। अगर हमसे पूछा गया कि विच वन इज एडजेक्टिव एंड विच वन इज प्रोनाउन, कंफर्म कैसे करें। सर दोनों सेंटेंस में दिस आया हुआ है, दोनों एक ही बात कह रहा है, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, और दूसरा कह रहा है कि दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। सर दोनों का मतलब भी एक ही निकल रहा है, दोनों का हिंदी भी एक ही निकल रहा है, सेंस भी दोनों का एक ही है सर, और बोथ द सेंटेंसेस आर रिटन सेम बट इन डिफरेंट मैनर। तरीका सिर्फ अलग है लिखने का, बाकी दोनों का मतलब एक है, दोनों लिखे सेम है।
दोनों में दिस आया सर, तो विच दिस इज प्रोनाउन एंड विच दिस इज एडजेक्टिव, ये कैसे पता चलेगा सर? उसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। When the word means demonstrative word is used with that particular noun which it is qualifying or modifying, जिसको क्वालिफाई कर रहा है, जिस नाउन के बारे में वो बात कर रहा है, अगर उसी के साथ यूज हुआ है तो वो एडजेक्टिव होगा। जैसे आप बोलो दिस पेन, दोज बॉयज, दीज गर्ल्स, दीज कार्स, तो ये सारे वर्ड चूंकि उस कार के बारे में बोल रहा है उसी के साथ यूज हो रहा है, तो ये these will be called adjective, demonstrative adjective। क्या कहलाएंगे? Demonstrative। And when the noun and this pronoun both are apart from each other, या demonstrative words are apart from this noun or pronoun, जिसके बारे में वो बता रहा है उससे दूर है। जैसे यहाँ पर लिखा this is, और जिसके बारे में बता रहा है my pen, पेन, तो पेन यहाँ पर है, दिस यहाँ पर है, तो ये क्या होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. दोज आर द बॉयज। ठीक है, क्लियर हो? तो जब दोज बॉयज अलग अलग रहेगा, दोज बॉयज, दोज आर द बॉयज, दोनों डिफरेंट होगा, दोज बॉयज साथ में होगा तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, और जब दूर दूर रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। ईच एंड एवरीवन knows about this word interrogative, to ask a question. The words which are used to ask a question are known as interrogative words। ऐसे शब्द, जो शब्द की मैं बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। अब सेंटेंस में हम आते हैं तो क्या होता है? The sentences which are used to ask a question, ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। When interrogative words are used to qualify or modify a noun or pronoun, these are known as interrogative adjectives। अच्छा, इसमें भी देखिए, इसमें भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सेम बात होती है। जैसे आपने बोला कि which is your book, which is your book, तुम्हारी बुक कौन सी है? तो this which it is interrogative pronoun। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव में लिखना है तो हाउ विल यू राइट? आप इस तरह से लिखोगे, which जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको साथ ले आओ, book, which book is yours, which book is yours। now which book यहाँ नाउन यहाँ पर है, इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हो, तो दिस विल बी कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया दोनों? एकदम क्लियर है ना? Yes, sir. कौन सी बुक आपकी है, कौन सी बुक आपकी है, दोनों का मतलब एक ही है, बस दोनों को लिखने का तरीका अलग है, बिल्कुल डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में इसलिए रखनी है क्योंकि ये आपको फंसाते हैं। सेंटेंस में मिल गया, किसी ने क्वेश्चन आपको दिया और पूछ लिया कि जस्ट टेल मी कि इज इट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, जो मैंने आपको तरीका बताया। अगर प्रोनाउन के साथ उस नाउन के साथ जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं उसके साथ लगा हुआ है तो एडजेक्टिव बोलिए, और दूर दूर है तो प्रोनाउन बोलिए। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पजेसिव वर्ड पजेशन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्वामित्व, मेरा, तुम्हारा, इनका, उनका, बात होती है ना? ठीक है, तो आप जैसे सेंटेंस बोलते हो दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, वो माय नॉट जो यूज हो रहा है, जो आप यूज कर रहे हो माय वर्ड, वो क्या है? पजेसिव वर्ड है। ठीक है ना? तो आप इस सेंटेंस को देखिए, पजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे दैट इज माय स्कूल, आप बोल रहे हो दैट इज माय स्कूल। क्लियर? तो आप उस स्कूल को डिफाइन करने जा रहे हो, माय वर्ड आपने यूज किया, माय, दिस इज यूज्ड विद दैट नाउन पर्टिकुलरली to which you are qualifying or modifying, तो this word will be used there as possessive। देखिए वहाँ that को अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है, that word नहीं, वो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? बांटना। यू नो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। जब आप बांटने की बात करते हो, बांटने की बात मीन्स कि कोई भी चीज इकट्ठा है उसको आप डिफरेंट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, उसको आप अलग अलग कर रहे हो। As example is given, every student should respect elders. Every student should respect elders, right? So at this place what you are saying कि हर एक बच्चे को
टीचर्स का सम्मान करना चाहिए या फिर अपने पेरेंट्स का या बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. नाउ द थिंग इज गिवन हियर एवरी स्टूडेंट। चलिए, तो आप वहां पर स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स आर ऑल टुगेदर, बट यू आर सेइंग टू ईच एंड एवरी, मींस पर्टिकुलर वन, इनको भी करना है, 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 और जितने हैं यहाँ पर सबको करना है। तो यू आर सेइंग पर्टिकुलरली अबाउट वन मींस पर्टिकुलरली अबाउट ईच स्टूडेंट, एवरी, ईच, राइट? या कभी कभी आप सेपरेट करते हो तो आइदर, पेरेंट्स हैं आपके, आपने बोला आइदर फादर और मदर विल कम टू स्कूल। आपने अलग अलग कर दिया दोनों को, कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके, तो ये वर्ड्स जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स में काउंट किए जाएंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। ओके, तो Sir, सपोज neither will not now. हाँ, either neither whatever these words are also. Now you have to do exercise. In exercise A and B both are given here. Okay, so this will be your homework for today, and online students and you both have to do this exercise as homework, and further we will discuss about its solution. Okay, so thank you class.